ਉਹ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਤੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੋਚੂ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੀਗਲੀ ਸਾਈਨ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰੇ, ਡੋਨਰ ਮਰੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ कर रहे हैं, आपकी तरफ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇशन नहीं कर रहे। तो मेरे गले में लॉकेट था, लॉकेट को देख के कहते आप अब भी सरसा जाते हो। मैंने कहा छोड़ा ही नहीं। ऑपरेशन हो गया। कहते करमजीत जी नारा लगाओ, शुक्र मनाओ कि हम भी डेरे जाएं। वो डॉक्टर मुझे मजाक करने लगे, पर मैंने कहा सतगुरु ने अगर तेरी ज़िंदगी बख्श देनी है ना तुझे, कोई नहीं मार सकता, चल चलते हैं। कहते डेरे वाले के काम तो इन्हों का बाबा कहता ऐ कर दिंदा। अच्छा, एक सत्संगी सी उन्हां च। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। आज हम कुछ ऐसे मेहमानों से आपको मिलाएंगे जिससे आपको बहुत ही प्रेरणा मिलेगी और आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट की है उन्होंने जी। मिलते हैं आज के मेहमान से जी। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई। मैम क्या नाम है आपका? माय नेम करमजीत। करमजीत? हाँ जी। करमजीत जी, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है? +2। जो डेरा सच्चा सौदा है, इससे आप कब से जुड़े हो? मेरा पूरा परिवार पिता से कम 1970 में जुड़ा जी। उसके बाद परिवार फैमिली ऑटोमेटिक सतगुरु की रहम से जुड़ती गई जी। ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਜੋ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਡਨੀ ਡੋਨੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਪਾਏ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਸੁਣਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਆ ਜੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਮਲੀ ਪਹਿਨਾਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਫਾਦਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ? ਬਲੱਡ ਮੈਂ 17 ਵਾਰੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਡਨੀ ਦੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਡਨੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਤੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੋਚੂ। ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤੀ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹਮ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਚੱਲੋ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੀਗਲੀ ਸਾਈਨ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰੇ, ਡੋਨਰ ਮਰੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ नहीं कर रहे। करमजीत जी, जितना दसिया कि भाई जो डॉक्टरों ने मना कर दिया था, ठीक है, तो जब मना कर दिया तो फिर वो एग्री कैसे हुए फिर बाद में? जब आपने बोला, जैसे उन्होंने कहा कि भाई अब डोनर मरे या फिर पेशेंट मरे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो फिर इस ये तो बहुत एक खौफ पैदा हो जाता है कि भाई किसी की भी लाइफ, हो सकता है दोनों की लाइफ चली जाए। तो इस टाइम पे तो क्या सिचुएशन थी घर में, कैसा माहौल? पूछो मत। सारे गुरु ही कह रहे थे, तू जाने तेरा काम जाने। मेरे में ही सतगुरु ने इतना हौसला दिया हुआ था।
मेरा सतगुरु कभी गलत नहीं करता, वो अच्छा ही कराएगा मेरे से। जैसे ही किडनी डोनेट होगी, बेहोशी में ले जाया गया मुझे। वो पूछते हैं बेहोश करने से पहले कि आपको कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मेरे गले में लॉकेट था, लॉकेट को देख के कहते आप अब भी सरसा जाते हो। मैंने कहा छोड़ा ही नहीं, मैं पढ़ी वहाँ हूँ, रहती वहाँ हूँ, खाती पीती वहाँ से हूँ, मैं छोड़ूंगी भी नहीं। ना ही टाइम लेके आई सतगुरु ऐसा कभी। ऑपरेशन हो गया, कहते करमजीत जी नारा लगाओ, शुक्र मनाओ कि हम भी डेरे जाएं। वो डॉक्टर मुझे मजाक करने लगे। मैंने कहा ठीक है, दुआ करते हैं सतगुरु आपको भी जोड़े। जैसे ही ऑपरेशन हुआ मुझे बड़ी शांति भी मिली। मुझे ये भी हुआ कि किसी की जान बचाई करमजीत ने। एक और बड़ी बात मुझे देखने को मिली। जी। मेरे ब्रदर को बोला गया कि आपको 1 महीना आईसीयू में रखा जाएगा। जी। ऑपरेशन के 12 घंटे बाद मुझे होश आता है। उधर मेरे ब्रदर को नहीं है होश आया। तो डॉक्टर मुझे उठाते हैं, कहते उठो करमजीत, ये आपका ऑपरेशन हो गया। मैं उठ गई। उठने से पहले उठा तो जाते ही नहीं, टांके होते हैं, है ना। कहते अपने आप उठो, आप ये सपोर्ट दे दिया आपको, इसको हाथ लगा के उठो। मैं सपोर्ट लेके अपने आप उठी। फिर खड़े होने में भी दिक्कत होती है, टांके होते हैं। फिर कहते आपको हौसले वाली बात बताते हैं। जी। बताओ। कहते आपका ब्रदर बिल्कुल ठीक है। क्या बात है। कहते आप मिलना चाहोगे, आप पहले ब्रश कर लो, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन का खतरा होता है। ब्रश किया मैंने, कपड़े चेंज किए। इतनी रहमत देखने को मिली वहाँ मुझे लगा मेरा ब्रदर कभी बीमार ही नहीं हुआ। क्या बात। और मुझे रोने के सिवा कुछ नहीं आया वहाँ। कि हम सोचते नहीं वो हमारे लिए इतना कर देते, ये तो हमारा कोई कर्म होता है। बिल्कुल। कि आ जाता है सामने, लेकिन वो हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ता। इसलिए फादर को फादर ही नहीं, गुरु ही नहीं, क्या कहें उसके लिए अल्फाज नहीं। चलो, ब्रदर के लिए तो आपने इतना बड़ा त्याग किया, सेक्रीफाइस किया। क्या ये अगर दूसरा कोई ब्लड से अलग होता तो क्या भी यही भी फिर भी यही आपका जज्बा रहता? उसकी भी बात बता देती हूँ सर। डॉक्टरों की मीटिंग होती है वहाँ। मैंने 4 साल स्ट्रगल किया, कभी कोई फॉर्म भर, कोई टेस्ट ले, कभी कोई कहीं साइन करवाओ। मुझे पता है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया। जब मेरे ब्रदर को जवाब दे दिया गया, मैं अकेले में डॉक्टरों की टीम को मिलती हूँ अंदर जाकर। मैंने कहा मेरा काम सारा हुआ पड़ा है, आप किसी और को दे दो, मेरा ब्रदर नहीं बचने के लायक है। तो क्योंकि अगर मैं होर के लिए प्रोसीजर तैयार करूँगी, उसके लिए भी इतना टाइम ही देना पड़ेगा मुझे। बेटर है किसी और की भी जान बचे, अगर मेरा ब्रदर नहीं बच पा रहा। तो कहते उन्होंने फिर ये सोचा एक ट्रायल है आपका। अच्छा। मतलब आपने ये कह दिया उनको, डॉक्टरों को, जो मैं समझ पाया आपसे, कि भाई अगर मेरा ब्रदर ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं बच पा रहा, तो आप मेरी किडनी किसी दूसरे को, पेशेंट को दे दो, उनकी जान बचे। चलो, कर्म है उसके। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, आगे उसकी किस्मत। जी। अगर उन्होंने यही सोचा कि डोनर का इतना ख्याल है, तो क्यों ना इसका ट्रायल ही लिया जाए। तो ट्रायल लिया गया मेरे ब्रदर का। जी। चलाने वाला सतगुरु था, वो भी एक था। कहते सतगुरु तो कहते डेरे वाले काम ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦੋ ਪਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਲਿੱਤਾ ਸਾਡਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ठीक हो जाएंगे। ठीक। फादर डेज पे आप अपने गुरु फादर को क्या कहना चाहोगे? गुरु फादर को यही कहूँगी, सतगुरु से यही अरदास करूँगी, मालका वो काम करवाना जिससे मैं आपका कभी शुक्राना ना भूलूँ, आपकी दास बन के रहूँ, आपकी हर टाइम सेवा करूँ, आपको ही चाहूँ, आपको ही देखूँ। बस ये ख्वाहिश है कि मैं उसका दिल से कभी शुक्राना कभी ना बोलूँ। बस यही अरदास रहती है हर टाइम। तो दर्शकों, ये वाकई में एक अजूबा है कि एक लड़की होते हुए करमजीत ने अपने ब्रदर को किडनी देके, जो कि एक पीजीआई की तरफ से डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था,
और उनका सब कुछ किडनी वगैरह डैमेज, दोनों किडनी डैमेज हो चुकी थी। तो आज उन्होंने अपनी किडनी दे के एक गुरु का तो नाम रोशन किया ही किया है, और एक फादर डे पे उनको एक याद में अपना उनका नाम रोशन किया है अपने गुरु का, और जिसे वो गुरु पिता कहते हैं। अगर आप में से भी कोई ऐसा दर्शक है जो इन चीज़ों से, जो ऐसे वेलफेयर काम कर चुका है और वो अपना इंटरव्यू देना चाहता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी।